السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہی ہوں گے۔ میں نے یہ ویڈیو خاص طور سے حسن ارمان کے لیے بنایا، اور اس ویڈیو سے پہلے بھی میں نے ایک اور ویڈیو بنایا تھا، وہ بھی حسن ارمان کے لیے ہی۔ اور میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں اور یہ خواہش رکھتا ہوں کہ آپ لوگ میرا سپورٹ کریں گے، میرا ساتھ دیں گے، اور میرا نہیں، میں اپنا ساتھ دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگ حق کا ساتھ دیں گے۔ ویڈیو بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ حسن ارمان جو ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں نعت کا، کسی اور چیز کا، بہت اچھی بات ہے، وہ کرے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن بیچ بیچ میں وہ ایک ٹپنی کر دیتا ہے، بیچ بیچ میں کوئی ویڈیو شارٹ میں ایک شیئر کر دیتا ہے، فلاں نے مجھے ایسا کہا تو میں نے اس کو ایسا جواب دیا، فلاں نے ایسا کہا تو میں نے اس کو ایسا جواب دیا۔ تو اسی طرح میں نے ایک ویڈیو دیکھا اس کا، جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کسی آدمی نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سنی بن جاؤ۔ تو میں نے ان کو یہ کہا، ان سے یہ کہا کہ نہ تو میں سنی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، نہ ہی وہابی ہوں، میں صرف مسلمان ہوں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے حسن بھائی، لاکھوں سلام ہے آپ کو میری طرف سے، لاکھوں سلام ہے آپ کو میری طرف سے۔ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہم صرف اس کو یہ جواب دیے کہ ہم صرف مسلمان ہیں، ہم کوئی گروپ سے تعلق رکھنے والے نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ذرا آپ یہ بتا دیجئے، آپ کچھ بھی نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے، سنی نہیں، بریلوی نہیں، وہابی نہیں، اہل حدیث نہیں، سنی کس کو کہتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ سنی کا مطلب جانتے ہیں آپ، یا یوں ہی پھڑپھڑا رہے ہیں پرندوں کی طرح؟ سنی کا مطلب کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں سنی؟ اپنے ادھر ایک رواج چلا آ رہا ہے دیہات میں خاص طور سے کہ ہم سن کے مسلمان ہوئے اس لیے ہم سنی ہو گئے۔ ارے بھائی، سنی، اصل سنی تو وہی ہے جو قرآن و حدیث پہ عمل کرے، جو قرآن و حدیث کے طریقے پہ، نبی کے طریقے پہ، سنت کے طریقے پہ، صحابہ کرام کے طریقے پہ، تابعین، تبع تابعین، جو بھی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو زندگی بسر کرے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں چلے، قرآن و حدیث کے مطابق چلے، وہی تو سنی ہے۔ آپ چلتے ہیں، میں نہیں مانتا آپ کو سنی، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں میں آپ کو سنی نہیں مانتا، آپ نہیں ہیں سنی، کیونکہ آپ کو سنی کا میننگ ہی نہیں معلوم، سنی کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ قرآن میں آپ بس بول دیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم مسلمان ہو تو ہم صرف مسلمان ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے۔ اگر پڑھے لکھے ہو تو قرآن کو اٹھاؤ، اس کا ترجمہ دیکھو، اس کے بعد ویڈیو بناؤ اور شیئر کرو دوسروں کو، سمجھ کے، سمجھنے کے بعد شیئر کرو، اس سے پہلے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تم مسلمان ہو، بس ہم مسلمان ہیں۔ ارے پڑھو اس آیت کو۔ چند پیسوں کے لیے سوشل میڈیا پہ پیسے کمانے کا ذریعہ بنا رکھے ہو، بناؤ، کماؤ، خوب اچھی بات ہے، تم کو جو کرنا ہے کرو، لیکن قرآن و حدیث پہ ٹپنی مت کرو۔ پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں، میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، اور جو بڑے عالم ہیں، جو علماء کرام ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے آدمی کی اصلاح کریں، ایسے آدمی کو سمجھائیں، غلط میسج پہنچتا ہے دوسرے کو غلط میسج پہنچتا ہے، یقیناً اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ صرف ہمارے آدمی نہیں ہیں، صرف ہم ہی اور آپ نہیں ہیں، بہت سارے آدمی ہیں۔ قرآن میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم سب مسلمان ہو تو بس میں مسلمان ہوں، تم کو سب کچھ معلوم ہے،
वजू का तरीका, गुसल का तरीका, नमाज का तरीका, नमाज के फराइज, वाजिबात, सुन्नत, मुस्तहब मालूम है आपको? बस यूं ही फगड़ा रहे हैं, कुछ मालूम तो है नहीं। हज का, ज़कात का, रोजे का, निकाह का, तलाक का, हर चीज का मसला मालूम है आपको? मैंने कह दिया मैं सिर्फ मुसलमान हूं। क्या मुसलमान? खाक मुसलमान हो। कुछ तो शर्म करो। पैसों के खातिर अपने ईमान का सौदा मत करो, अपने ईमान को मत बेचो। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आप हैं दाखिल पूरे के पूरे? मैंने इससे पहले भी एक बात कहा था ना कि मैं आपको सुन्नी नहीं मानता हूं। हकीकत में आप सुन्नी नहीं है, क्योंकि इस्लाम में कुत्ता पालने की इजाजत नहीं है, और इजाजत अगर है भी तो कहां पर? खेत की रखवाली के लिए, शिकार के लिए, इसके लिए पालना जायज है, लेकिन उसका हर चीज अलग हो, रहने का, सहने का, खाने का, पीने का, हर चीज का ही अलग हो उसका। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले मैंने आपकी बहन को वीडियो में देखा कि कुत्ते को अपनी गोद में सुलाए हुए उसके सर को सहला रहे हैं, ऐसे सहला रहे हैं, और दूसरों से कह रही है कि भाई मेरे कुत्ते के लिए दुआ कीजिए, बीमार है, ये सही हो जाए। मुसलमान हो आप? अरे बेगैरत कहीं के, काहे का मुसलमान हो? जिस घर में कुत्ता पाला जाए उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, और मुसलमान की बात कर रहे हो आप कि मैं मुसलमान हूं? क्या मुसलमान हो आप? किसी वजह से वीडियो रुक गया था, कॉल आ गया था किसी का, जिसकी वजह से वीडियो रुक गया था। मैं फिर वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां पर बात खत्म हुई थी। मैं ये बोलना चाह रहा था, आप क्या बोल रहे हैं? मैं मुसलमान हूं, जिसके बारे में कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है। मुझे तो नहीं लगता, ना तुमको सुन्नी का मतलब मालूम है, ना मुसलमान का मतलब मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम। अगर ऐसी बात होती, अगर तुमको मुसलमान का मतलब मालूम होता, सुन्नी का मतलब मालूम होता, तुम ऐसी बात ही नहीं करते। लेकिन वीडियो में मैंने देखा, फेसबुक में ही, आपकी बहन कुत्ते को गोद में सुला के उसको सहला रही है, दूसरों को कह रही है कि दुआ कीजिए मेरे लिए, मेरे कुत्ते के लिए दुआ कीजिए, ये बीमार है, अल्लाह ताला इसको शिफा कर दे। कोई भी जानवर है, कोई भी तकलीफ में है, कोई भी जानवर हो, उसका यह करना चाहिए। कुत्ता है, उसका इलाज मुआवजा करना चाहिए, सही बात है। लेकिन कुत्ता पालने का जो इजाजत दिया है, परमिशन दिया है इस्लाम में, वो किस हद तक है? खेत की रखवाली के लिए, शिकार के लिए, उसका हर चीज अलहदा हो, अलग हो। यहां तो अपने गोद में सुला के सहला रही है, तेल लगा रही है, नहला रही है, दुआ करवा रही है, और बोलते हैं कि मैं मुसलमान हूं। और दूसरे ऐसे ही आदमी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आराफ में आयत नंबर 179 में कहा है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके दिल हैं, उनसे समझते नहीं। उनके दिल तो हैं, अल्लाह कह रहा है उनके दिल तो हैं, लेकिन वो उनसे समझते नहीं। वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनकी आंखें हैं, उनसे देखते नहीं। उनकी आंखें हैं लेकिन देखते नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके कान हैं, उनसे सुनते नहीं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल्ल उलाइका हुमुल गाफिलून, वो ऐसे हैं, कैसे? जानवरों की तरह, जानवरों के जैसे है, बल्कि उनसे भी गए गुजरे, उनसे भी भटके, उनसे भी बेपरवाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कह रहा है, तुम जैसे आदमियों के लिए ही कह रहा है, तुम जैसे जितने भी आदमी है ना, उसके लिए ही यह आयत बिल्कुल फिट बैठता है। क्योंकि तुम्हारे पास जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में कहा है, तुम्हारे पास दिल है, नहीं समझ रहे हो, आंख है, नहीं देख रहे हो, कान है, नहीं सुन रहे हो, फजूल की बातें इधर की उधर करते हो। जिस तरह जानवर को किसी चीज का शऊर नहीं, अकल नहीं है, बल्कि उनसे भी गए गुजरे बता दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। कुछ तो शर्म करो भाई, कुछ तो शर्म करो। मरना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है,
क्या मुंह दिखाओगे उनको? सोचो। अगर मेरी बात बुरी लगी, तकलीफ हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं, और मैं जो भी बात करता हूं खुल के सामने करने वाला हूं, सामने करता हूं, ठीक है। अगर मुझसे बात भी करना चाहें, मेरा एड्रेस लेना चाहे, मैं पूरा देने के लिए तैयार हूं। बात कीजिए, मैंने कोई गलत बात कही है, मुझसे आके मिलिए, बात कीजिए। और इस पे, उसके इस पोस्ट पे, उसके इस कमेंट पे, उसके इस वीडियो पे बहुत सारे आदमी जिस तरह के वो, जहां पे शी ने देखा, मीठी चीज देखा, मक्खी भिनाते हुए चले आते हैं, उसी तरह पोस्ट पे देख रहा हूं, कमेंट पे बहुत सारे ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत सारे। अरे भाई, उसके साथ साथ तुम भी गुनहगार हो रहे हो जो भी ऐसे कमेंट कर रहे हैं। कोई कोई आदमी तो यहां तक कमेंट किया है कि भाई साहब, आप उसकी बात पे, उसके कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, जो ऐसा कमेंट करता है वो अपने बाप की पैदाइश नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि जो ऐसा बोल रहा है वही अपने बाप की पैदाइश नहीं होगी, क्योंकि कोई भी ईमान वाला, कोई भी जायज पैदाइश वाला ऐसी बात नहीं करेगा दूसरे के लिए। आप लोग सोच रहे हैं कि हम सिर पर लिख दिए तो हम बहुत बड़े हो गए, आप भी उस गुनाह में शामिल है। कोई गलत बात अगर बता रहा है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी उस गुनाह में शामिल हैं। कोई मुजरिम अगर कोई जुर्म करता है और उसका कोई सपोर्ट करता है, कोई साथ देता है, तो वो भी बराबर का हकदार हुआ उस जुर्म में। क्यों? कि आप सपोर्ट किए तो उसका हिम्मत बढ़ गया, हौसला बढ़ गया उसका। यही अगर आप उसका सपोर्ट नहीं करते तो उसका हिम्मत बढ़ता नहीं, उसका हौसला नहीं बढ़ता। इसी तरह गलत बात पे, गलत वीडियो पे उसका सपोर्ट मत कीजिए। अल्लाह के सामने हाजिर होना है, जवाब देना है, ता कयामत हमको इसी दुनिया में नहीं रहना है। जितने दिन की जिंदगी है सही तरीके से गुजार लीजिए, क्योंकि अल्लाह के सामने हाजिर भी होना है। आखिर में मैं अपना एड्रेस दे देता हूं। मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है, मेरा घर बड़ी नाकी है, पोस्ट छोटी नाकी है, अंचल सनहौला है, डिस्ट्रिक्ट भागलपुर, बिहार। मेरा फोन नंबर है 8340642161। अगर किसी को बुरी लगी हो, दिल का जितना भी भड़ास निकालना हो, गाली देना हो, कुछ भी देना हो, दे सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मैं जो भी बोला हूं मेरा अल्लाह जानता है मैं गलत बोला हूं या सही बोला हूं। खास तौर से जाते जाते मैं उन उलमा से गुजारिश करूंगा जो जानकार है, मैं तो जानता नहीं, मुझे जितना सा मालूम था मैंने उतना सा बता दिया। जो आलिम उलमा है उनसे गुजारिश है कि ऐसे आदमियों की इस्लाह करें, ऐसे आदमियों को टोकें। गलत अगर मैसेज कर रहा है किसी को तो टोकें, उसको मना करें इस बात से, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। आपको मालूम है कि ये गलत कह रहा है, फिर आप उस पर खामोश इख्तियार करेंगे तो ये सही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और मुझसे कहने में, सुनने में जो भी गलती हुई हो, मैं आप नादरीन से और अल्लाह ताला से भी माफ़ी चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला भी माफ़ करे और आप लोग भी हमें माफ़ करे। अगर कुछ गलती हो गई हो बोलने में, कहने में, तो बराए करम उसकी इस्लाह कर दें, मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट करके इस्लाह कर दें, या मैं नंबर बताया हूँ उस पर भी इस्लाह कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ और आपसे भी सीखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारा खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।